Okay, very good evening to all of you. I hope that my screen and the voice is clear. So let's get started. बच्चों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ CUET का एक लास्ट ईयर का एक पेपर. So we'll be looking at one of the slot papers of CUET, physics paper, which had 50 questions. So this year there might be lesser questions, but last year 50 questions थे, and we had to look at doing any 40 out of them in 45 minutes. So अगर हम देखें तो पेपर में क्वेश्चंस कितने किस टाइप के आते हैं वो हमें समझना चाहिए, किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं वो क्लियर होना चाहिए, एंड लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है पेपर का. So I will talk about those things and then I'll be discussing many questions, whatever time permits, we'll keep doing it. But I might not do it to the last step. That is not the intent. I'll not write the answer for you, but I'll give you hints to do it, right? So hopefully we'll try to do most of the questions. I will not be touching the deleted part, but CBSE ने कुछ part delete किया है. But अभी मैं वो touch नहीं करूँगा because you have not read it. So the intent is not to make you do those topics right now. The intent is to make you look at the questions and also give you an idea कि paper कैसा आता है. And most importantly, most of the numericals here might turn out to be the questions in your CBSE board as well. तो इसलिए इन questions को ध्यान से देखिएगा because similar numericals आएंगे आपके CBSE में भी without choices, right? So without choices, so we have choices here, but there you won't have choices. So you are going to sit in today's class with the pen and notebook क्योंकि आप साथ साथ मेरे questions करते रहोगे. So please maintain that momentum for the next 1.5 hours. It will really help you and you'll be a much more satisfied candidate student after the session because आपने काफी न्यूमेरिकल्स कर दिए होंगे और सारे चैप्टर्स टच हो रहे हैं. बच्चों एक तो ना हम डरते बहुत हैं. वी फील दैट जो टिपिकल फॉर्मूले हैं जो हमें नहीं आते उन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं. ऐसा नहीं होता यार. हमें बहुत चीजें आती हैं, हमें ये विश्वास होना चाहिए, हमें ये फेथ होना चाहिए और हम बहुत कुछ कर सकते हैं उसके बेसिस पे ही. सो यू माइट नॉट बी एबल टू डू ईच ऑफ द क्वेश्चन बट यूल बी एबल टू डू मोस्ट ऑफ देम. बट अगर मैं CUET एग्जाम की बात करूं तो बाय द टाइम यू अपीयर फॉर इट, which the exam start from May 21st, तो आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि तब तक आप इस लेवल के बहुत सारे क्वेश्चंस कर लें. सो एक्चुअल पेपर स्टार्ट करते हैं हम. Before we discuss the questions, here I've shown you a breakup of how the 50 questions looked. तो ये जो 50 क्वेश्चन थे इसमें you had 6 questions from electrostatics. When I say electrostatics, I've included feed, I've included potential, I've included capacitors, I've included dipole, I've included everything here. So there were 6 questions of it. You could assume कि एक क्वेश्चन पोटेंशियल एनर्जी पे आ गया, एक पोटेंशियल पे आ गया, डाइपोल पे आ गया, कैपेसिटर पे आ गया, सारे कॉन्सेप्ट्स टच हो गए. Then there was a case study from current electricity. Current electricity से पूरा case study है, 5 का marks और अच्छा case study है. We should look at it. Magnetic field and magnetism. So this is also magnetic field and magnetism. There were lesser questions from magnetism, more questions from magnetic field, 6 again. So electrostatics and magnetic field are two heavy parts. And yes, actually it is not one single chapter. In our NCERT it is 2 chapters each. So ये 4 chapters से 12 questions आए हैं. Current electricity से 5 questions आए हैं, तो heaviest chapter तो वही हो गया अब तक का. EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से 5 है बस. वेरी इंपॉर्टेंट. हम इसको लाइटली लेते हैं, इससे 5 क्वेश्चंस आ गए. एसी से एक ही क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है. तो एसी को इफेक्टिवली हमें मान के चलना है कि एसी और ईएम वेव से मिला के 3 क्वेश्चंस आएंगे. ईएम वेव से 2 आ गए. थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, डूएबल हैं, बट आई थिंक आपको ये देखना चाहिए कि आपको ईएम वेव्स जैसे चैप्टर और एसी से मिलके 3 क्वेश्चंस आएंगे. सो इट कैन बी 2 फ्रॉम एसी एंड 1 फ्रॉम ईएम वेव्स आल्सो. रे ऑप्टिक्स अगेन 5 क्वेश्चंस. वेव ऑप्टिक्स ओनली फ्रॉम इंटरफेरेंस यू हैड ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस. मॉडर्न फिजिक्स 1 में मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया. आई हैव इंक्लूडेड एटम्स,
मॉलिक्यूल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स नहीं लिखना चाहिए, मॉलिक्यूल्स तो हैं, एटम्स, न्यूक्लियाई एंड ड्यूअल नेचर, ये तीनों चैप्टर्स यहाँ आ गए। सो एटम्स, न्यूक्लियाई एंड dual nature. So there have been 9 questions from it. Easy, doable, but yes, 9 questions. Modern physics 2 is basically only semiconductors. Semiconductors and then communication, which you don't have in CBSE. There are 2 questions from it. So ये कर सकते हो, बाद में theoretical chapter है. It is at the most needs 4 hours from you. 4 घंटे पढ़ लोगे, मार्क्स आ जाएंगे. सो अब अगर मैं देखूं तो हमें क्या क्या अच्छे से करना है, हमें सारे चैप्टर्स अच्छे से करने हैं. EMI बहुत इंपॉर्टेंट है. AC और EM वेव्स को थोड़ा सा निग्लेक्ट कर सकते हो, कम्युनिकेशन को थोड़ा सा निग्लेक्ट कर सकते हो. EMI, AC और कम्युनिकेशन, इनसे केस स्टडी भी नहीं आएगा. सो यू विल नॉट हैव अ केस स्टडी. खतरनाक इसलिए होता है कि अगर केस स्टडी वाला टॉपिक नहीं आता है तो यू मिस ऑल द 5 क्वेश्चंस. सो ऐसी सिचुएशन इनसे कम है. बाकी से केस स्टडीज आ सकती हैं, बिकॉज यू कैन सी देयर आर एटलीस्ट 4 or 5 क्वेश्चंस फ्रॉम देम. वेव ऑप्टिक्स से भी केस स्टडी नहीं आनी चाहिए, बिकॉज अगेन वेव ऑप्टिक्स से अगर 5 क्वेश्चन आ गए तो वो बहुत ज्यादा वेटेज हो जाएगी, राइट. बट ऑल द अदर टॉपिक्स कैन हैव केस स्टडीज. प्लीज कीप दैट इन माइंड. तो ये तो रहा एनालिसिस. अब हम देखें डुएबल क्वेश्चंस कितने थे. अब अगर आप देखो तो इस पेपर में 28 और 14, 28 मॉडरेट क्वेश्चंस थे, सॉरी इजी क्वेश्चंस थे, 14 मॉडरेट थे, which means 42 questions were doable. 8 were difficult, and when I say difficult, it is not difficult, it is not very difficult, it is like a 5 marker or a 3 marker of the board. So बहुत difficult questions नहीं हैं. You will see them as we go along. Simple questions हैं, doable questions हैं, but फिर भी if I have to categorize at the relative level, difficult का मतलब जो कि थोड़े से मुश्किल हैं, वो 8 questions ही हैं. So majorly easy questions. Only theory 3D based questions were 16 in number. Application, when I say application, तो वहां पे reasoning questions की बात हो रही है, where you have to apply a given law to reason out things, वो 10 है. Numericals 24 है. So numericals 24 है, and they're easy numericals. This is how the breakup is for the questions. So ये आपको जरूर आइडिया होना चाहिए कि कैसा पेपर आ रहा है. 42 क्वेश्चंस डुएबल दिख रहे थे इस पेपर में. और अगर मैं देखूं यहाँ से, तो यहाँ से मेजरली थियरी क्वेश्चंस आपसे सारे होने चाहिए, बिकॉज यू हैव स्टडीड एवरीथिंग. न्यूमेरिकल्स में कुछ गलती हो सकती है, सो न्यूमेरिकल्स में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में ज्यादा गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं, बिकॉज दे गिवन रीजनिंग चॉइसेस, एंड इफ दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर तो गड़बड़ होने का चांस ज्यादा है. So here you have to be very careful, though they look easy की theory है, but numerical simple moves. So this is how it looks like, right जी? अब हम देखते हैं इसमें पेपर में questions कैसे आए. So I start with the first question. Electric potential due to a dipole on the equatorial line at a distance r from the center of the dipole is. So आपको dipole moment दे दिया, आपको बोल दिया assume dipole is as very short. So इसका आंसर क्या होगा? मेरे हिसाब से आप सबको एकदम रटा हुआ होना चाहिए, बट अगर नहीं रटा हुआ है तो भी मैं, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है, मैं जरूर करके दूंगा. पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. सो इक्वेटोरियल लाइन पे the position of the negative charge and positive charge from the equatorial point is such that both are equidistant. Let's say this is R, this is also R. Since potential is scalar, जितना नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, उतना ही पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा. तो इस पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? 0 होगा. सिंपल, फटाक से मार्क करो. बट कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो मेरा सजेशन है ऐसे क्वेश्चंस में, किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले रेडी रहो और डायग्राम बनाओ. जैसे ही डायग्राम बनाओगे आंसर श्योर हो जाएगा. दिस वाज द ट्रिक है, नथिंग एल्स.
The electrostatic force between the plates of an isolated parallel plate capacitor having a charge capital Q and area of each plate A is. This is a good question, right? अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. अब कैसे करेंगे, right? इतना तो हमें समझ में आता है कि Q और A दोनों न्यूमरेटर में नहीं आ सकते. ठीक है, Q और A दोनों न्यूमरेटर में नहीं आ सकते, तो ये चॉइस नहीं हो सकती. सिंपल वे टू एलिमिनेट. ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट फोर्स का नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, तो ये भी नहीं हो सकता. अगर फोर्स है तो उसमें चार्ज Q स्क्वायर, Q1 Q2, क्योंकि Q1 Q2 होता है फोर्स में, तो Q स्क्वायर आएगा ही आएगा, इसलिए ये भी चॉइस नहीं हो सकती. अब अगर किसी को क्वेश्चन नहीं भी आता, थोड़ी सी बुद्धि लगाए, थोड़ा सा कूलम फोर्स की तरफ चले, तो चॉइस एलिमिनेशन से वो आंसर ए मार्क कर देगा. ओके, दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट. बट मैं आपको, अगर ये क्वेश्चन चॉइसेस नहीं है तो भी मैं आपको बता देता हूँ हाउ डू यू डू इट. सो टू डू इट, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम है. बच्चों, ये रही दो प्लेट्स. एक प्लेट पे चार्ज है प्लस Q एंड ऑन द अदर प्लेट द चार्ज इज माइनस Q. सो डेंसिटी दोनों प्लेट्स की मैग्नीट्यूड में, डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी मैग्नीट्यूड में सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A हो गई. अब आप जानते हो कि देयर बी अट्रैक्टिव फोर्स, और अगर मैं नेगेटिव प्लेट पे फोर्स देखूं तो इस तरफ होगा, एंड दिस फोर्स F विल बी इक्वल टू Q ऑन द नेगेटिव प्लेट multiplied with E इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉजिटिव प्लेट. अब पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, and that has to be multiplied with Q to give you the force. अब मैं सिग्मा को Q by A लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा Q square upon 2A epsilon naught. Story is over. तो ये तो हो गया करने का तरीका, बट अगर नहीं आ रहा है तो कैसे एलिमिनेट कर सकते हो चॉइस, वो आपको मैंने समझा दिया. राइट, आई होप थिंग्स आर लुकिंग डूएबल. आई होप you're able to understand that it is doable. आता हूं मैं next question पे, and I'll give you time. Please try it out. So we'll give 1 minute to each question so that you try out and then we discuss. 2 point charges are located 2 meters apart in vacuum. The electric field at the midpoint of the line joining the two charges is. Electric field at the midpoint. I'm not speaking, I'm just drawing the diagram so that all of you try to do it the same way. इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है तो आप यहाँ पर एक डिस्चार्ज लेके आओगे. So you can see that as the point, the midpoint on the line joining the two charges, you can see that the positive charge will repel the test charge, the negative charge will attract the test charge. So both of them, due to both of them, the electric field is in the same direction, that is towards the negative charge. अब आप देख सकते हो E1, electric field due to one of the charges will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square. So 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised to the power 9. Q is 3 into 10 raised to the power minus 6. And you can see R square is 1 only. So R is 1, तो R square हो गया 1. तो ये हो गई 9 into 3, 27 into 10 raised to the power 3. This is the electric field due to one of the charges. It can also be written as 2.7 into 10 raised to the power 4. मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कितना आसान काम. अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स बराबर हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड which is E1 plus E2 will be twice of this. So 2 into 2.7 into 10 raised to the power 4 newtons per coulomb is what you have to look at. 2 into 2.7 is 5.4. आंसर, काम खत्म हो गया. वैसे भी अगर आप यहां तक पहुंच जाओगे, आपको लास्ट स्टेप करने की भी जरूरत नहीं है. You know from the beginning that this is not going to be the answer.
When you get this value, you know this is not the answer, this is not the answer. The only answer is 5.4 into 10 raised to the power 4. So थोड़ा सा एक्टिव रहना, इफेक्टिव रहना, अलर्ट रहना, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, राइट? कैसा लग रहा है अभी तक? आई होप you must be enjoying, you must be able to understand that the questions are doable. अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे. अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बहुत फिट है. I think you should give it a minute, otherwise मजा नहीं आएगा. So please give it a minute to do it. This is my question number 4. हो गया बच्चों? So what do we see here? आप देख रहे हो, मैं इधर बनाता हूं डायग्राम. आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से. इसका मतलब as you move forward, you can see that the gap is increasing. Gap increase होने का क्या मतलब है? Gap increases, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस इन मैग्नीट्यूड. अब आप भूल जाओ सब कुछ. आपके लिए तो एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है डाइपोल में, और इन दोनों में जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर इधर फोर्स लग रहा है, और जो नेगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स इधर लग रहा है. लेट मी कॉल इट एफ डैश. You can see that f dash will be equal to, magnitude में f dash will be equal to q into the electric field at that place. So if I take the electric field at this place to be E1 and the electric field at this place to be E2, we all know that E1 will be greater than E2, which means in magnitude f dash will be greater than f. अगर f dash greater than f है और मेरा डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, and as f dash is greater than f, you can see that the net force will be in the direction of f net. So ये मुझे समझ में आ गया कि net force on the dipole would be to the left, dipole moment is to the right. अब मैं देखता हूँ choices. The dipole will not experience any force, हो ही नहीं सकता क्योंकि electric field variable है. The dipole will experience a force in the direction of P. No, you can see it is opposite to the direction of P. The dipole will experience a force opposite to P. Opposite to P, yes. So C is my right option when I see to it. और C right option है, तो ये बहुत बड़ी बात हो गई कि हमने आराम से आंसर निकाल लिया यहाँ पे. And the dipole will experience a force perpendicular to P. Not possible. बच्चों possible ही नहीं है perpendicular to P, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा है तो एक चार्ज पे, दोनों चार्जेस पे जो फोर्स लगेगा वो पी के डायरेक्शन में ही लगेगा, है ना, पी की लाइन वाले के अलोंग ही लगेगा. जस्ट अ सेक बच्चों. There was some problem with the screen, so it got stuck. So it's now rectified. So this way we've done the particular question. Now let me come to this question. This is your question number 5. A system consisting of two charges, 7 microcoulomb and -4 microcoulomb, are placed -9, 0, at -9, 0, and 9, 0, respectively. The electrostatic potential energy is, बच्चों हम जानते हैं कि electrostatic potential energy is K Q1 Q2 by R, है ना. So K की वैल्यू हो गई 9 into 10 raised to the power 9. Q1 हो गया आपका 7, Q2 हो गया -4, तो ये माइनस यहाँ लगा दिया. 7 into 4 into 10 raised to the power -12 हो गया ये, डिवाइडेड बाय R. R कितना लेंगे हम? R जो है, एक पार्टिकल है -9 पे, बाकी सारे कोऑर्डिनेट 0 हैं. दूसरा है +9 पे, तो ये सेपरेशन हो गया कितना? 18 सेंटीमीटर्स, which is equal to 18 into 10 raised to the power -2 meters.
तो यहाँ आ गया 18 इंटू 10 रेज टू द पावर -2. सो 9 1 जा 9 2 जा 2 1 जा 2 2 जा 4. तो ये आपको यहीं से दिख गया कि ये 14 के टर्म्स में आ रहा है, यानी कि मेरा आंसर, मुझे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, मेरा आंसर ये हो गया. तो थोड़ा सा आप कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में व्हेन चॉइसेस आर देयर, पूरा कैलकुलेशन मत करो, पकड़ो क्वेश्चन को और खत्म करो. ठीक है बच्चों? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, यू आर एबल टू फॉलो, यू आर एबल टू डू. नेक्स्ट हम आते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे. इट सेज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल of radius capital R with distance from the center of the shell may be represented as. ऐसे क्वेश्चन को मैं करने के चक्कर में ही नहीं पड़ूंगा. मुझे पता है शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, हमेशा 0 होगी, यानी कि स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती. तो ये गया, ये गया, ये गया. चॉइसेस हैं, इसको मार्क करो, आगे देखो भी मत क्या हो रहा है, काम खत्म. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा धमाका क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, ट्राई करो इसे पहले. सो बच्चों बहुत खतरनाक नहीं है. पहले मैं बात करूंगा शॉर्टकट की. आप जानते हो कि करंट लूप में करंट ऐसे है. सो अगर मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालूंगा तो फिंगर्स को कर्ल करूं करंट के डायरेक्शन में, आउटवर्ड आ रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, और बाहर की तरफ ये डायरेक्शन है आपका एक्स डायरेक्शन है, और एक्स डायरेक्शन में आ रहा है आपका मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर, और ये मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होता है आपका मैग्नीट्यूड में आई मल्टीप्लाइड विद एरिया. तो ये हो गया IAB. अब हम जानते हैं टॉर्क जो होता है दैट इज इक्वल टू M क्रॉस B. टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B. तो अब मैं M क्रॉस B कर दूंगा, तो M है मेरा किस डायरेक्शन में, I कैप डायरेक्शन में अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, और B वेक्टर है मेरा, B मैग्नीट्यूड में B है, डायरेक्शन में K कैप है. अब बच्चों I क्रॉस K क्या होता है? I क्रॉस K, सबसे पहले डायरेक्शन देखते हैं. सो हमने ये साइकिल पढ़ी थी कि I, J और K वेक्टर्स में, कि whenever we have to find the cross product, so if we are moving in the direction of this cycle, so I cross J will give K, K cross I will give J. अगर उल्टे साइकिल में चल रहे हैं तो नेगेटिव मिलेंगे. सो I क्रॉस K कर रहा हूं तो क्या मिलेगा मुझे, -J मिलेगा. अब -J डायरेक्शन होगा. अब -J डायरेक्शन में चॉइस ही एक है, काम ही खत्म हो जाता है. सो इफ यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड, वेरी गुड, यू विल राइट इट एज IAB इन द -J कैप डायरेक्शन. बट अगर आप वैसे देखो तो आप सिर्फ डायरेक्शन से ही देख लेते, क्योंकि आप क्वेश्चन पकड़ सकते थे. एक +J है, एक K है, एक I है, एक -J है. सबसे पहली चीज, जब मैग्नेटिक मोमेंट I कैप डायरेक्शन में है तो टॉर्क I कैप में नहीं हो सकता. टॉर्क वेक्टर मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा. तो टॉर्क का डायरेक्शन K कैप नहीं हो सकता, टॉर्क का डायरेक्शन I कैप नहीं हो सकता. टॉर्क का डायरेक्शन हो सकता है +J या -J, बस उतना ही देखना था. और फिर हम -J देख के काम खत्म करते, आगे बढ़ते, सिंपल. क्योंकि टॉर्क जब M क्रॉस B है और M वेक्टर है आपका I कैप में और B वेक्टर है K कैप में, क्योंकि ये लिखा हुआ है ना Z डायरेक्शन है, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन चेंज कर दिए हैं थोड़ा सा. आपने अगर ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए. सो यहाँ I क्रॉस K करते ही आएगा -J. That is again I'm reiterating and telling you how to do it quickly. So हर क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए क्या करना चाहिए वो हमें पता होना चाहिए. अब बच्चों ये क्वेश्चन जो है, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर, पिछला कौन सा था, 7 था, ये हो गया 8th क्वेश्चन. ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो आप फंस जाएंगे. इसलिए मैं कहूंगा कि प्लीज इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है. सो लुक एट द फॉर्मूला. इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, वेरी गुड. इफ यू डोंट रिमेंबर, यू विल बी स्टक.
तो इसलिए पहले पढ़ के ट्राई करो इसे जरा। अब आप जानते हो कि व्हेन, इसमें डायग्राम ऐसे बनता है, इफ यू रिमेंबर, द मैग्नेटिक फील्ड बी इज इन दिस डायरेक्शन, द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज नीदर परपेंडिकुलर नॉर अलोंग बट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद बी। तो हम जानते हैं कि बी का जो वी का जो कंपोनेंट इधर आएगा दैट विल बी वी cos 60। सो वी cos 60, पिच का मतलब जितनी देर में वो जो चार्ज पार्टिकल है वो एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करता है, उतनी देर में वो आगे कितना आ जाए अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे मूव करता है ना हेलिकल पाथ में, इफ द वेलोसिटी इज एट सम एंगल टू बी, तो वो जो है दिस विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन इनटू टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्कुलर मोशन, क्योंकि वन सर्कुलर मोशन में वो कितना आगे आएगा, दैट इज पिच। सो टी हम जानते हैं, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πm/qb, ये हम जानते हैं। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग एल्स, इनटू v cos 60। सो अगर आप इन वैल्यूज को रखेंगे, अब रखेंगे तो πm/qb तो सब में है, तो पहले इस चॉइस को अगर आप चाहो तो उड़ा भी सकते हो, बाकी चॉइसेस तो हमारी फिट ही है, πm/qb। और हम देखते हैं कि हमारा बाकी चीजें क्या हो रही हैं। तो हमारा v कितनी है 160, cos 60 कितना है 1/2 इंटू 2, बस इतना देखना है, ये दोनों कैंसिल हुए, मेरे पे 160 आ गया। आंसर ये है, कुछ कैलकुलेशन और करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला ध्यान होना जरूरी है, अगर फॉर्मूला ध्यान नहीं होगा तो गलती हो जाए। Otherwise, all these are 1 minute questions, less than 1 minute types. ठीक है, दिख रहा है ना, ये सीधे ही थियोरेटिकल क्वेश्चन है, मैं आंसर मार्क करूंगा और आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, उससे ज्यादा हमें इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो याद रखना, दिस इज E/2m इज कॉल्ड द गायरोमैग्नेटिक रेशियो। थियोरेटिकल क्वेश्चन, ज्यादा रिसर्च नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, दिस विल बी माय क्वेश्चन नंबर 10। सो अभी आप देख सकते हो हमने अराउंड 15 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस किए हैं। जबकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इफ यू आर डूइंग इट 1 मिनट पर क्वेश्चन चर्न हो रहा है अभी तक। Length is given, radius is given, total number of turns are given, I is given, पूछा है मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते हो सोलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू म्यू नॉट, सॉरी number of turns per unit length into I. Mu naught is 4 pi into 10 raised to the power minus 7. N, number of turns per unit length is 500 upon 0.5 and I is 5. सीधा 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 काम और कुछ नहीं। So it is 20 pi into 10 raised to the power something, है ना। तो जैसे ही मैं 20 पाई करूंगा, इसका मतलब 2 पाई तो होगा ही होगा, 2 पाई का मतलब 6.28 तो होगा ही होगा टाइप्स, ऐसा दिख जाता है यहाँ से, है ना। और क्योंकि आपने एक 4 और एक 5 को ले लिया है, क्योंकि ये वाला 5 और ये वाला 5 एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, इसलिए 20 पाई मैंने इसलिए लिखा है बच्चों। आप समझ रहे हो ना। आप सोच रहे होगे कि क्यों लिख दिया सर ने 20 पाई। मैंने 20 पाई इसलिए लिखा कि 20 पाई यहाँ से आया, ये 5 कैंसिल हो जाएंगे, 10 की पावर नीचे है -1, ऊपर है -5, क्योंकि -7 + 2, तो वो 10 की पावर्स तो हम एडजस्ट कर ही लेंगे। सो अगर आप देखो तो ऊपर 10 की पावर -7 में से जितने गए और ये किया हमने, सब कर करा के फटाक से आंसर ये आएगा। ज्यादा टाइम नहीं लगाना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, काम हो गया, ओवर एंड आउट। अगला क्वेश्चन, प्लीज इसे पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एंड आई डोंट थिंक यू विल टेक टू लॉन्ग टू आंसर दिस क्वेश्चन।
सो बच्चों इस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ने में टाइम लगेगा. यू नो दैट इफ द वायर्स कैरी करंट इन द सेम डायरेक्शन दे विल अट्रैक्ट, इफ दे कैरी करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन दे विल रिपेल. सो पहली चीज फिगर 1 में अट्रैक्ट करेंगे. फिगर 1 में अट्रैक्ट करेंगे यानी ये चॉइस होती ठीक सी लग रही है. फिगर 1 अट्रैक्ट, फिगर 2 रिपेल. कुछ और करने की जरूरत नहीं है, मार्क करो, आगे बढ़ो. पढ़ना भी मत बाकी चॉइसेस को, क्योंकि सिंगल चॉइस करेंगे, है ना. और ऑब्वियस सी बात है, पहले ही आप सी और डी को तो एलिमिनेट ही कर सकते हो पढ़ते ही. सो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, जस्ट डूइंग, रीडिंग एंड ओवर. डरना नहीं. थियोरेटिकल क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस को मैं अभी स्किप कर रहा हूं. तो आप पढ़ लो, आंसर चॉइस माइक मार्क कर लो. इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड गेट दिस डन. सो आपको समझ में ही आ गया होगा, पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि ए और ई गए. सो this is just a question that needed reading. Again, reading based questions. If in a solenoid, if number of turns per unit length are doubled, self inductance would be. हम जानते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस में ऊपर आता है N1 N2, याद है, और इसमें सॉरी N स्क्वायर आता है. एक मैग्नेटिक फील्ड से और एक फ्लक्स से, दोनों से N स्क्वायर आता है. सो यू नो दैट सेल्फ इंडक्टेंस L इज प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर. अब आपने नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दिया, N की जगह 2N हो गए, तो L डैश इज प्रोपोर्शनल टू 2N का होल स्क्वायर. क्योंकि अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ डबल हुए तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स भी डबल ही हो गए ना. ठीक है बच्चों, सो अपना आंसर मार्क किया फटाक से, डी, आगे बढ़े. सिंपल. सो देख रहे हो 1 मिनट पर क्वेश्चन टाइप चल रहा है. The current in a coil falls from 5 amperes to 0.00 amperes in 0.1 second. If the average EMF of 200 volts is induced, the value of self-inductance is. Formula: EMF induced E is equal to L Ti by dt in magnitude. काम इतना सही है. 200 is equal to L di is 5 by dt is 0.1. ठीक है. तो आपको क्लियरली दिख रहा है यहां से L कितना हो गया बच्चों, ये हो गया आपका 50 आया इसके नीचे यहाँ पे, तो L कितना आ गया 4 हेनरी. काम खत्म. 5 upon 0.1 is 50 over. अगला क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो. अ वेरी गुड क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन. प्लीज गिव टाइम टू इट. You will be able to do it better. So ये आपका बल्ब है which is a resistance, और ये है इंडक्टर. So ये इंडक्टर को हमें ऐसे दिखाना चाहिए एक्चुअली. इंडक्टर ऐसे है और इसके अंदर आयरन कोर है, तो क्या होगा. You know that Z would be equal to under root of R square plus XL square. XL is ओमेगा इंटू L. ओमेगा तो AC की सेम ही है, ओमेगा तो कांस्टेंट है, पर जैसे ही आपने इंडक्टर में से सॉफ्ट आयरन कोर को निकाला, उस इंडक्टर की इंडक्टेंस कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी. यू नो दैट जैसे ही आपने आयरन को विड्रॉ किया,
you know that XL, which is omega into L, will decrease. X डिक्रीज होते ही Z डिक्रीज हो गई, Z डिक्रीज होते ही I इंक्रीज हो गया, बिकॉज वी नो दैट E इज इक्वल टू I इंटू Z. सो आपने इन EMF अप्लाइड EMF को तो चेंज किया नहीं है, तो E तो अप्लाइड EMF है, इज इक्वल टू I इंटू Z. अब अगर Z डिक्रीज हुआ तो ऑब्वियस सी बात है I इंक्रीज होगा, और I इंक्रीज होगा तो बल्ब के अक्रॉस पावर ज्यादा कंज्यूम होगी, इसलिए बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी. ध्यान रखने वाली बात, ठीक है. क्विक, ये सब क्वेश्चन बस पढ़ लो, हो जाएंगे ऐसे ही, मतलब कुछ करने को ही नहीं है इसमें ज्यादा. सॉरी, यहाँ पे मिस हो गया था. सो हो गया क्वेश्चन, मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे. कहां तक पहुंच गए हम, कौन से क्वेश्चन तक पहुंच गए? दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, राइट. देख रहे हो आपके स्पीड से काम चल रहा है. नेक्स्ट आते हैं इस क्वेश्चन पे. इसको करने के लिए थोड़ा टाइम लगा लो, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है बहुत. सो हमें फेजर डायग्राम से ही देखना होगा, वो इंपॉर्टेंट है. फेजर ऑफ करंट हम ऐसे दिखाते हैं. आई होप बच्चों आप लोगों ने मेरा AC पे मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ाते हुए सेशन लिया है, उस सेशन को जरूर देख लीजिएगा. इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प. मैं लिखता भी जा रहा हूँ, आप करते जाइएगा साथ में. सो बच्चों समझ में आ रहा होगा, tan phi इज इक्वल टू XL अपॉन R. और सबसे बड़ी बात है कि करंट विल लैग, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस विल लीड. तो अब अगर मैं इसी पे पकड़ लूं इसे कि पोटेंशियल डिफरेंस विल लीड वाली बात है, तो 90 तो एंगल हो नहीं सकता. करंट लीड कर नहीं सकता, इतना तो पता है मुझे. अगर मेरे पास इंडक्टर और रेजिस्टर है तो वोल्टेज लीड करेगा, करंट लैग करेगा. तो ये भी खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गई. बड़ा आसान काम हो गया, आराम से मार्क करो, आगे बढ़ो. हाँ, अगर किसी को वैल्यू निकालने का शौक है तो वो जरूर कर सकता है. tan phi इज इक्वल टू XL बाई R, XL इज इक्वल टू ओमेगा इंटू L बाई R. तो अपनी इसकी ओमेगा दी हुई है हमें 50 हर्ट्ज, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो हो गई 2 पाई इंटू 50. और L कितनी है अपनी, 2/3 पाई डिवाइडेड बाई 50. तो ये 50 से 50 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया. मेरे पास आ गई है किसकी वैल्यू, tan phi की. tan phi इज इक्वल टू XL बाई R से सीधे आ गया 4/3. काम खत्म. सो देख रहे हो बच्चों, कॉन्सेप्ट अगर ध्यान है, if you are, if you've done the theory well, if you've understood the things well, the questions can be done in no time. This was question number 17 as per our paper.
ठीक है, जितना आपको करना था उसका आधा पेपर हो चुका है रफली। अगला क्वेश्चन, गिवन फिगर शोज अ प्लेन कॉइल इज मूविंग विद वेलोसिटी v। किस तरफ प्लेन कॉइल मूव कर रहा है वो भी आपको क्लियर है। आपको ये पता है कि हर केस में मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। हो गया बच्चों? अब आप देखो बच्चों, in the first case if the coil is brought closer, flux increases, so current has to be induced so as to decrease the flux। और अगर करंट को ऐसे फ्लो होना है कि वो फ्लक्स को डिक्रीज करे, यानी कि उसमें करंट लूप में ऐसे होना चाहिए ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड लूप की वजह से जनरेट हो वो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड का अपोज कर सके, क्योंकि जितना लूप पास लाया जाएगा, लूप का एरिया फिक्स्ड है बट बी इंक्रीज होने की वजह से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स को रिड्यूस करने के लिए इस कॉइल को ऐसी मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस करनी होगी जो कि अपोज कर सके किसका, किसका अपोज कर सके, एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड का। तो इसलिए चॉइस ए तो हो गई खत्म। अब जैसी चॉइस ए खत्म हुई इसका मतलब हमारी चॉइस सी ठीक हो गई, क्योंकि उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ठीक है। तो ये हो गया आंसर, इतनी सी बात है कि नहीं बच्चों? सो बहुत बहुत केयरफुली करने वाली बात है। और अगर सी ठीक है तो बी ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों केस में आप देख सकते हो कि करंट का डायरेक्शन सेम है बट वी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसलिए बी ठीक नहीं हो सकती। आप इसलिए एलिमिनेट करना भी सीख लो। और अगर फोर्थ केस में भी कॉइल मूव कर रहा है हर केस में, तो करंट तो इंड्यूस होगा ही होगा, तो ये भी ठीक नहीं हो सकती। सो वेरी सिंपल टू एलिमिनेट द चॉइसेस आल्सो। बच्चों प्लीज इनका जब भी आप चाहो, जब भी आप फ्री टाइम हो, इन सॉल्यूशंस को जरूर देखना, दे विल हेल्प यू अ लॉट, दे विल हेल्प यू अ लॉट। मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि देखोगे तो समझ में आ जाएगा। Again a theoretical question, so let me leave the theoretical questions and very simple questions, right? Let's do the typical ones। अब हम ये आ जाते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन पढ़ लिया बच्चों? You can see that you're using two different wavelengths, दो अलग अलग wavelengths यूज कर रहे हो आप in a Young's double slit setup, and the screen and the slit positions are same in both the cases। तो इसका मतलब मेरे को दो अलग अलग पैटर्न मिलेंगे और फ्रिंज विड्थ अलग अलग होंगी। एक केस में फ्रिंज विड्थ आएगी कैपिटल डी लैम्डा 1 बाई स्मॉल डी, दूसरे केस में आएगी कैपिटल डी लैम्डा 2 बाई स्मॉल डी। अब वो कह रहा है कि इफ you have to look at the least distance from the central maxima where the bright fringes due to both wavelengths coincide। bright fringes due to both wavelengths coincide मतलब अगर फर्स्ट वाले की वहां पे कोई n1 फ्रिंज बन रही है तो सेकंड वाले की n2 फ्रिंज सेम पोजीशन पे बननी चाहिए, then I'll say that they are coinciding। so y for n1 fringe of lambda 1 and y for n2th fringe of lambda 2 should be the same, and that is why I equated the y's, so you get these as cancelled, and what you have here is n1 lambda 1 is equal to n2 lambda 2। ठीक है ना? अब इस डेटा तक आप सब आराम से पहुंच जाओगे, पहले यहां तक कर लो। और अब आप देख सकते हो इससे हमारे पास क्या आएगा कि n1 into 5000 is equal to n2 into 6000, है ना? एंगस्ट्रम्स कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी फिफ्थ bright fringe of n1 is coinciding with sixth bright fringe of n2। क्या ये बात समझ में आई आपको?
सो n1 by n2 आ गया, ये आ गया मेरे पास। अब हम देख सकते हैं कि therefore for the fringes to coincide, अब मैं कह सकता हूं यहां से कि n1 by n2 is equal to 6 by 5, यानी कि 6th bright fringe of n1 is coinciding with 5th bright fringe of n2। n2 की फ्रिंजेस ब्रॉड होंगी क्योंकि उसका लैम्डा ज्यादा है, तो उसकी कम फ्रिंजेस बनेंगी, और n1 की ज्यादा फ्रिंजेस बनेंगी कोइंसिडेंस वाले पॉइंट तक। तो n1 की 6, n2 की 5। अब हम देख लेते हैं n1 की 6th फ्रिंज कहाँ बनेगी। n1 की 6th फ्रिंज कहाँ पे बनेगी? 6 इंटू कैपिटल टी की जगह क्या आ गया? 1 इंटू लैम्डा 1 की जगह क्या आ गया? 5000 इंटू 10 raised to the power minus 10 divided by small d, that is 1 into 10 raised to the power minus 3। अब हम देख सकते हैं 6 इंटू 5 30 आ रहा है, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? 3 mm होना चाहिए इस हिसाब से आंसर। समझ गए? तो बस इतना सा काम करना है, बट आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। इफ दैट इज क्लियर, आई थिंक इट वुड बी ग्रेट। अगर किसी को डाउट है तो वो अभी पूछ सकता है मुझसे। आई बी मोर देन हैप्पी टू टेक इट। ये हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 21 तक। अब बच्चों जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं स्किप करता चलता हूँ। इफ वी नीड टू कम बैक, आई विल कम बैक एट एन अप्रोप्रिएट टाइम, बट मैं कहूंगा फिर भी हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो ये है, इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स इज 9/25, then the ratio of maximum intensity to minimum intensity is, आप जानते हो, इट इज इक्वल टू रूट i1 प्लस रूट i2 का स्क्वायर अपॉन रूट i1 माइनस रूट i2 का स्क्वायर। और ये आपका i1 by i2 दिया हुआ है आपको, i1 by i2 इज इक्वल टू 9/25। तो अब आप इससे सॉल्व कर लेना, प्लीज टेंशन मत लेना, इसको सॉल्व कर लेना। इसका आंसर क्या आना चाहिए हम निकाल ही लेंगे। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बोर्ड के लिए कर ही रहे होगे। लेट मी मूव अहेड। ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, डायरेक्ट प्रिज्म पे बेस्ड है, सो मुझे लगता है कि ये आप लोग कर सकते हैं। ये भी सिंपल है। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 with both surfaces of same radius of curvature has a focal length of 20 centimeters, the radius of curvature of the surface will be, हो ही जाएगा for sure। हम पहुंच कौन से क्वेश्चन तक गए अब? लेट मी जस्ट चेक। reach question number 24। 24 ही है, आंसर है इसका 22 सेंटीमीटर्स। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 से। ये क्वेश्चन सब सिंपल हैं यार, मतलब इसमें एक का चीज पकड़ लोगे सब कुछ हो जाएगा। अब जैसे मैं पकड़ लूं, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज rear view mirror, total internal reflection is used in optical fiber। तो मुझे पता चल गया B का 3 है, और सॉरी ए का 4 है। ए का 4 होते ही मेरी या तो ये चॉइस होगी या ये होगी। अब मैं आ गया बी पे, बी का 3 है, बी का 3 है तो फटाक से ही मार्क किया, काम खत्म। इतना सा काम है, देर नहीं लगनी चाहिए इन क्वेश्चंस में। ये सिर्फ फोकल लेंथ निकालने का क्वेश्चन है। एन ए जी, ध्यान देना सब में एन ए जी आ रहा है, तो एन ए जी इज नथिंग एल्स बट दे टॉकिंग अबाउट म्यू ओनली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, उसे ऐसे लिखते हैं। सो वो ध्यान रखिएगा, और कोई चीज नहीं है इसमें, ठीक है ना? फॉर्मूले आपको आते हैं, सो आई वोंट वेट फॉर दिस। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसको पढ़ के ट्राई कर लो थोड़ी देर। आई गिव यू 2 minutes to read this question and try this question, and then we'll discuss it. पढ़ लिया बच्चों? So we all know that the intensity at any point, if I call it I1, यहाँ पे it is Young's subset experiment using monochromatic light of wavelength lambda, the intensity of light at a point on the screen where path difference is lambda is k units,
what is the intensity of light at a point where the path difference is lambda by 3. So एक जगह पर path difference between the two light waves reaching is lambda and at the other place it is lambda by 3. तो वो पूछ रहा है कि what is the difference in the intensities. तो अगर मैं first point पे intensity देखूं और ये मान लो कि दोनों सोर्स की इंटेंसिटी सेम है तो इट विल बी इक्वल टू I प्लस 2 रूट I into I and that is 2I cos phi. अब फर्स्ट केस में अगर मैं देखूं तो phi 1 is equal to 2 pi by lambda into delta x, क्योंकि phi का फॉर्मूला होता है phi is equal to 2 pi by lambda into delta x. तो डेल्टा एक्स पहले केस में लैम्डा है तो phi 1 हो गया कितना 2 पाई एंड phi 2 कितना हो गया phi 2 हो गया 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा बाई 3, यानी 2 पाई बाई 3 हो गया, 2 पाई बाई 3 हो गया अपना, ये तो हो गया 2 पाई तो हो गया अपना 360 डिग्रीज और ये हो गया अपना 2 पाई बाई 3 यानी 2 इंटू सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, हाँ तो ये हो गया अपना कितना 120 डिग्रीज. ठीक है ना. अब हम जानते हैं कि cos 120 की वैल्यू का हमें आइडिया है और हमें cos 360 की वैल्यू का आइडिया है, ये इंपॉर्टेंट है. सो अब I1 जो होगा हमारा, अगर मैं उसे देखूं तो I1 जो है आपका, जिसे आप K यूनिट्स बोल रहे हो, दैट इज नथिंग एल्स बट इक्वल टू 4I. तो K जो आया आपका वो कितना आ गया 4I आ गया. और जब आपने I2 निकाली तो आपका आया I प्लस 2I cos 120 डिग्रीज. आप जानते हो cos 120 इज माइनस cos 60 विच इज माइनस 1/2. तो ये आपकी कितनी आ गई 2I माइनस I, दैट इज I, है ना. तो आप बोल सकते हो कि अब जो इंटेंसिटी I वो K डैश हो गई विच इज I. So K dash is equal to I which is equal to K by 4 and hence the correct answer is K by 4. ठीक है, समझ में आया है. अगर नहीं आया तो मैं एक बार फिर से कर देता हूँ. मैंने एक स्टेप मिस किया, मैंने अज्यूम किया कि आप सबको आ गया होगा, बट अगर किसी को नहीं आ रहा है तो मैं पहले और नीटली लिख देता हूँ. आई होप ये फेज डिफरेंसेस वाली बात आपको समझ में आ गई है. phi 1 आपको आ गया है समझ में 360 डिग्रीज. तो अब आपकी I1 जो फर्स्ट केस में इंटेंसिटी है जिसे आप K बोल रहे हो, दैट इज इक्वल टू द इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट सोर्स प्लस द इंटेंसिटी ऑफ द सेकंड सोर्स प्लस ट्वाइस रूट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट इन द सेकंड, दोनों बराबर हैं तो ये हो गया 2I cos 360 डिग्रीज. cos 2 pi is cos 0, तो ये हो गया आपका 4I. सेकेंड केस में जब हम निकालेंगे तो उसे हम K डैश बोल देते हैं. दैट विल बी इक्वल टू I1, दैट इज सॉरी I1 I2 यहाँ पे नेट इंटेंसिटीज हैं दोनों वाली और सोर्सेस की इंटेंसिटी I ईच है प्लस 2I cos 120 डिग्रीज. cos 120 डिग्रीज आपको पता होना चाहिए इट इज इक्वल टू माइनस cos 60 डिग्रीज. तो ये हो गया हमारा कितना 2I प्लस 2I इंटू minus 1/2, that is 2I minus I, that is I. So अब यहां से आप कह सकते हो कि K dash which is equal to I is equal to 1/4 of 4I or it is equal to 1/4 of K or it is equal to K by 4. ठीक है, समझ नोट कर लेना है, आगे बढ़ना है. अब फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए, हम सबको पता है वो कंडीशंस कि सोर्सेज मस्ट बी कोहेरेंट, द साइज ऑफ द स्लिट्स मस्ट बी स्मॉल, separation between the slits must be small, the screen must be placed close to the plane of the slits or not, ये आपको देखना है.
आप सारी चॉइसेस यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सिंपल है, कर लेना यार इसे। अगला क्वेश्चन, a converging beam of rays is incident on a concave lens. Sorry. लेंस की बात हो रही है। आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस द रेज कन्वर्ज एट अ पॉइंट at a distance 15 centimeters from the lens. If the lens is removed, the converging beam points of rays decreases by the converging point decreases by 5 centimeters. तो पहले रेज कहाँ कन्वर्ज हो रही थी? पहले रेज कन्वर्ज हो रही थी 15 सेंटीमीटर्स पे जब लेंस लगा दिया। सो कन्वर्जिंग बीम थी, आपने कॉन्केव लेंस लगाया तो कॉन्केव लेंस ने उसे डाइवर्ज किया, थोड़ा डाइवर्ज किया, तो वो जहां पहले कन्वर्ज होती इन द एब्सेंस ऑफ अ लेंस उससे आगे जाके कन्वर्ज हुई 15 पे। बट जब आपने ये कर दिया, लेंस लगा दिया, तो फिर वो सॉरी जब लेंस हटा दिया तो वो 5 सेंटीमीटर्स पहले यानी 10 पे कन्वर्ज हुई। तो अब आपको बताना है कि भाई क्या सिचुएशन, इसमें क्या करना है। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हो, क्योंकि ये एक लेंस की बात हो रही है और हम एक कन्वर्जिंग बीम की बात कर रहे हैं। सो प्लीज लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हम इधर से, मैं दिखा देता हूं आपको, बी वेरी केयरफुल विद सच अ क्वेश्चन। लाइट रेज इधर से इंसिडेंट हो रही हैं, ये कन्वर्जिंग बीम थी, इन द एब्सेंस ऑफ लेंस ये कुछ यहां पे मिलती, दिस डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर्स। अब ये बच्चों यहां पर रेज मिलती, बट बिकॉज ऑफ द लेंस they got diverged slightly and they reached this particular place. So इस केस में यहां पर अब आपको रेज दिख रही है कितना दूर, 15 सेंटीमीटर्स। सो आप ये समझ सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पर अगर लेंस नहीं होता तो रेज रेड डॉट पे मिलती, तो रेड डॉट हो गया इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और यहां पे बन रही है इसकी इमेज। अब सो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम लिखेंगे 1/v minus 1/u is equal to 1/f. All the measurements are being made in the direction of incident light, तो मैं इसे लिख दूंगा 1/15 minus 1/10 is equal to 1/f. सो सॉल्व करें इसे, तो 15 और 10 का एलसीएम आ गया 30, 2 minus 3 is equal to 1/f. तो यहां से f निकल के आ गई अपनी -30 सेंटीमीटर्स। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान देने वाला क्वेश्चन था, गलती हो सकती थी, अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे ऐसे क्वेश्चन में तो आपसे गलती होगी ही होगी। सो लेंस हटाया तो पॉइंट्स जो जहां पे पहले इमेज बन रही थी बिकॉज ऑफ द लेंस, अब उससे कन्वर्ज होके लाइट 5 सेंटीमीटर्स पहले यानी लेंस से 10 सेंटीमीटर्स वाली पोजीशन पे कन्वर्ज कर जा रही है, व्हिच मींस दैट इज यू। ध्यान ये देना था, दिस इज हाउ इट हैड टू बी डन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। छोड़ो इन क्वेश्चंस को यार, ये वाले क्वेश्चंस हो ही जाएंगे आपसे। तो हमने क्या किया थी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग डी ब्रॉगली वेवलेंथ triple, then the d Broglie wavelength associated with it becomes the kinetic energy of an electron having a d Broglie wavelength lambda is tripled, having d Broglie wavelength lambda is tripled. सॉरी क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है, इसको ठीक कर लीजिएगा, आंसर निकाल लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा बाई √3। तो उस पे मार्क करना, आगे बढ़ना। अभी हम इसमें आप सब कर ही लेंगे, इसलिए मैं इस पर टाइम नहीं लगाना चाहता। थियोरेटिकल क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है एकदम, फोटॉन्स पे
तो इनको आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी अभी आप लोगों ने अपने सिलेबस में पढ़ी नहीं है। एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ में रिलेशन पूछ रहा है, बस और कुछ नहीं है। सो छोड़ो अभी से। ये क्वेश्चन भी थियोरेटिकल है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन वर्किंग ऑफ अ फोटो डायोड इन सीक्वेंशियल ऑर्डर इन देयर अकरेंस। सो सबसे पहले क्या होगा, एक चीज इल्यूमिनेशन विद लाइट होगी। अगर इल्यूमिनेशन विद लाइट होगी तो उसके बाद क्या होगा, जो भी है हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन। सो सबसे पहला है सी, उसके बाद है बी। आंसर आ गया, आगे बढ़ेंगे, काम नहीं करेंगे। अब आप चाहो तो देख भी सकते हो। फर्स्ट थिंग इज इल्यूमिनेशन विद लाइट, second is absorption of the photon. When the absorption of the photon is done, the electron hole pair is generated, then separation of the electron hole pair exists, and because of the electric field, collection of electrons in n side and holes in p side. ये sequence फटाक से रखा हुआ आंसर भी। आगे बढ़ो, खत्म। ये क्वेश्चन जो है ये आपका ट्रांजिस्टर पे है। सो माय एडवाइस इज ट्रांजिस्टर्स पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप लोगों ने ट्रांजिस्टर्स पढ़ लेंगे आप, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला पे, ठीक है। सो प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा, दैट इज ऑल आई कैन से। अभी आई वुड नॉट डू इट बिकॉज यू एम नॉट रेडी। ये क्वेश्चन आ गया अब आपका, एंड दिस वुड बी क्वेश्चन नंबर, अपना कौन सा क्वेश्चन होगा ये, this is question number 36. So we are touching almost question number 36. हमारे पास 20 मिनट हैं और हमें 15 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। सो एनीवे थोड़ा सा हम स्किप करते हुए चलेंगे। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस। कौन सा फॉरवर्ड बायस्ड है, कौन सा रिवर्स बायस्ड है? फर्स्ट वाला फॉरवर्ड बायस्ड है, बी फॉरवर्ड बायस्ड है, सी फॉरवर्ड बायस्ड है। यू कैन सी इन ऑल केसेस the potential of the positive side is higher than the potential of the negative side. So मार्क करो, आगे बढ़ो। ये सीधे सीधे आपको दिख रहा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इनपुट वेव ऐसी है, आउटपुट वेव ऐसी है, क्या है भाई, हाफ वेव रेक्टिफायर है। आगे बढ़ो, गेट्स पढ़ लो और इसे कर लो सीधा क्वेश्चन है, मतलब कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है। इसको भी पढ़ लेना, ये चैप्टर आपको करना पड़ेगा अगेन, तो कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ेगा। 2 क्वेश्चंस आए हैं इससे। सो बी केयरफुल। कम्युनिकेशन के 2 क्वेश्चंस थे, वो हो गए हैं। अब हम आते हैं अपना एक केस स्टडी पे। केस स्टडी कैसे करना होता है? केस स्टडी अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको क्वेश्चंस करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आपने ये केस पढ़े हुए हैं या आपने थियरी पढ़ी हुई है तो क्वेश्चन सीधे सीधे कर सकते हो। आप प्लीज इस केस को जरा 2 मिनट लगा के पढ़ लो, क्योंकि इसके बाद इस पे 5 क्वेश्चन। बच्चों केस पढ़ लिया होगा शायद आपने। केस सिंपल है, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू बोस पोस्टुलेट, वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कांट बी डिटरमाइंड फॉर। आपने पढ़ा है कि बोस मॉडल इज वैलिड फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, है ना। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे किसके लिए ये वैलिड नहीं होंगे? क्वेश्चन हमारा सिंपल है। सो आपको पता है कि जिसमें भी इलेक्ट्रॉन्स, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हमें ऐसे करना है कि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन Li2 प्लस में है, He प्लस में, क्योंकि हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक निकाल दिया। लिथियम में 3 होते हैं, 2 निकाल दिए। हाइड्रोजन में एक ही होता है, तो बचा क्या हमारा? सोडियम। इसके लिए होगा, तो सॉरी टिक नहीं लगाने चाहिए इन पे, टिक तो लगेगा सिर्फ इस पे, दैट इज सोडियम, जो कि विच इज द ऑड वन आउट। सिंपल क्वेश्चन है। बोस क्वांटाइजेशन कंडीशंस, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड, सर्कमफ्रेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड, एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बोस मॉडल के बेसिस पे बताना है। बोस मॉडल में क्या बोला है? angular momentum is an integral is quantized and is an integral multiple of h/2 pi। मार्क करो, आगे बढ़ो। पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी इन चीजों के लिए। ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ
electron in hydrogen is minus 13.6 electron volts. de Broglie wavelength in the second excited state is, हम को de Broglie wavelength पूछी है। अब आप इस केस में क्या करेंगे, आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम de Broglie wavelength अगर निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा। ऐसे क्वेश्चंस में आपको एनर्जीज गिवन है, आपको कुछ नहीं करना, आप सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकालो और सीधे सीधे आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालनी है। आप उसमें लैम्डा एनर्जी के टर्म्स में लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी के टर्म्स में रख दो, आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकल आएगा। सिंपल चीज है एकदम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ क्योंकि दीज क्वेश्चंस आर डायरेक्ट, कर सकते हो आप। Bohr's model of an atom is classical picture of atomic structure, semi classical picture of atomic structure। उसने लिख दिया था पैसेज में, क्या लिखा था उसने, लिखा था कि इट इज सेमी क्लासिकल पिक्चर। मार्क करो, आगे बढ़ो। In the hydrogen spectrum provided by Bohr's model, spectral line falls, which case does it fall in the ultraviolet region? ultraviolet region का मतलब हम सब जानते हैं इसमें कि हमें अल्ट्रावायलेट रीजन में याद रखना चाहिए कि हमारा एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, वहीं पे अल्ट्रावायलेट यानी वेवलेंथ कम वाली होंगी। तो आगे आंसर देखना भी नहीं है, मार्क करो, आगे बढ़ो। सिंपल, समझ गए आप? सो ये क्वेश्चन फटाफट करने वाले थे, इसमें बस एक ही क्वेश्चन टाइम लेता, बाकी सब फटाफट होने वाले थे। अब आते हैं हम अगली केस स्टडी पे। अगली केस स्टडी को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये केस स्टडी मजेदार है एंड आई वांट टू स्पेंड सम टाइम ऑन इट, दैट इज व्हाई आई हैव गिवन इट टू यू। प्लीज रीड इट क्विकली। बच्चों पैसेज बहुत सिंपल है, क्वेश्चंस का पैसेज से कोई खास लेना देना नहीं है। यहां पे दिया हुआ है आपको, two cells of EMF E1 E2 are in and respective internal resistance इतने are connected in parallel as shown in the figure, the effective EMF is। तो अब अगर मैं इसे एक सर्किट में कनेक्ट करूं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो इसका इफेक्टिव EMF कितना होगा और ये कितना होगा, आपको ये याद रखना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज याद रखिएगा। दिस इज E1 R2 प्लस E2 R1, यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। और अगर ये पूछा जाए कि इसका EMF इक्विवेलेंट EMF कितना होगा, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 by R1 plus R2। Equivalent resistance of the cell that is used to replace them is R1 R2 upon R1 plus R2। अगर आपने इनमें से किसी भी एक सेल को उल्टा कर दिया तो इफेक्टिव EMF will be E1 R2 minus E2 R1 upon R1 plus R2 and E1 R2 minus E2 R1 में जो भी बड़ा होगा उसके डायरेक्शन में नेट बैटरी लेनी होगी, राइट। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि E1 का प्रोडक्ट R2 से होगा, E2 का प्रोडक्ट R1 से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 cells each of EMF E and internal resistance R are connected to an external resistance capital R. Show the value of current flowing in the circuit will be। अब आप देखो, एक सेल दूसरा सेल उल्टा लगा है, तो ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इफेक्टिवली एक ही सेल बचा है ना। तो अपना जो I निकालना है हमें, I दैट विल बी इक्वल टू E प्लस E माइनस E हो गया अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितनी हो गई, 3R प्लस कैपिटल R। सो हमारे पास ये आंसर आ गया E अपॉन 3R प्लस कैपिटल R। मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये पैसेज कहने के लिए, बट दे आर बेसिकली इंडिविजुअल क्वेश्चंस ऑन सर्किट्स, सो देख के करना है। When a cell is connected across external resistance 5 ohms, a current of 0.25 ampere flows through the circuit. If the external resistance is replaced by 2 ohm, a current of 0.5 ampere flows through it. The EMF of the cell
in the circuit is. देखने वाली बात है इस क्वेश्चन को, अच्छे से देखो बच्चों, पढ़ लो पहले and draw the diagram and then you'll be able to do it. So I want you to spend 2 minutes on this. This question has nothing to do with. So bachcho, I hope you've read it. It says when a cell is connected to an external resistance of 5 ohms. सबसे पहले सेल ड्रॉ करो, उसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है and there is an external resistance of 5 ohms. ये पहला सेटअप हो गया. दूसरे केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 2 ohms, सेल का ईएमएफ वही है, इंटरनल रेजिस्टेंस वही है, तो स्मॉल आर एंड ई रिमेन द सेम, स्मॉल आर एंड ई रिमेन द सेम. करंट इन द फर्स्ट केस इज 0.25 amperes, in this case it is 0.5 amperes. So अब मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट देखूं पहले केस में, तो इट इज 5 प्लस स्मॉल आर मल्टीप्लाइड विद द करंट दैट इज 0.25 will give you the value of E. And in the second case, the current is 0.5, the resistance is small r plus 2, and the EMF is E. So E is equal to I into total resistance, E is equal to I into total resistance. ये दोनों हमने बना दिया. अब आप इसे सॉल्व कर लेना. ठीक है बच्चों, सॉल्व करके आपकी स्मॉल आर निकल आएगी, स्मॉल आर निकलते ई निकल आएगी. ठीक है, आंसर मैं बता देता हूं आपको, आंसर विल कम आउट टू बी 1.5 वोल्ट. आप सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी. राइट नेक्स्ट क्वेश्चन. द वेरिएशन ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल विद करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय. यानी जैसे जैसे आप V बढ़ाओगे I बढ़ेगा, और अब आपका V और I में क्या रिलेशन होगा. ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया कि हमारे को पता है कि बेसिकली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल विद करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाय. तो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल जैसे जैसे बढ़ेगा, V इज इक्वल टू IR हम जानते हैं. तो जैसे जैसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा क्या होगा, हमारा करंट भी बढ़ेगा, एंड हेंस द करेक्ट आंसर वुड बी A इन सच अ केस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Two identical cells, each of EMF E and internal resistance small r, when connected in series or in parallel across external resistance capital R, give the same current. The relation between small r and capital R is two identical cells are connected in series. पहले केस में आपने सेल 1 उसकी internal resistance, सेल 2 उसकी internal resistance connected to an external resistance capital R किया. ये रहा E, ये रहा स्मॉल r, ये रहा E, ये रहा स्मॉल r. राइट. दूसरे केस में आपने सेल्स को लगा दिया पैरेलल में. connected to an external resistance capital R. Sorry. E small r, E small r, capital R. Now they're saying that the value of current is same in both the cases. तो फर्स्ट केस में करंट की वैल्यू कितनी आ गई, करंट की वैल्यू आ गई I is equal to टोटल EMF जो हो गया 2E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस जो हो गई कैपिटल R प्लस ट्वाइस स्मॉल r. सेकेंड केस में दोनों बैटरीज पैरेलल में हैं तो इक्विवेलेंट EMF E ही रहा. दो रेजिस्टेंसेस स्मॉल r पैरेलल में हैं तो उनका इक्विवेलेंट स्मॉल r by 2 आ गया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r by 2. ये हो गया मेरे पास. अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैपिटल R एंड स्मॉल r. थिंग्स आर प्रीटी एविडेंट फ्रॉम हियर. सो यू कैन सी 2 अपॉन कैपिटल R प्लस 2R
is equal to 1 upon capital R plus small r by 2. Cross multiply किया तो 2i's capital R plus small r is equal to r plus twice small r. ठीक है ना? तो अब यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास आ गया कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r आंसर. सो ये हो गया ए, चॉइस ए. सो क्या आप ये समझ पाए बच्चों कि ये पेपर बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. The entire paper is doable. We have to choose the right questions to do it. If you are able to see, I started the class at 4:30 and for the first 10-15 minutes I was talking about certain things. So ideally 4:45 is when we started the paper and we did it till 5:50. So if you look at it, I spent 65 minutes with you in doing how many questions? In doing 50 questions. Let's say 50 नहीं तो 40 तो किए ही हमने, बाकी 5-10 questions को skip किया तेजी से, but around 50 questions किए हमने 65 minutes explain करते हुए. So when you have to do the question, you can do it quickly and you can actually do more than what is needed in the stipulated time limit. So don't be worried. This is a paper where you can get full marks, and if you get full marks, you get admission in the best college. So PCM students and PCB students, everybody is worried. Physics मुश्किल है, physics में marks कम आते हैं, कहाँ से आएंगे कम यार? We've done everything. So this is how I took a paper, and I actually went and gave the paper also. Though this is not the set that I gave, I chose a different set because I wanted to discuss it. But I went and gave a set, and I can tell you it was good cakewalk. So आप भी तैयारी करेंगे अच्छे से तो हो जाएगा. The only thing is, please remember one important thing. थोड़ा communication पढ़ लेना, रेडियो एक्टिविटी कर लेना. ये केमिकल रेडियो एक्टिविटी की बात करूं, सो रेडियो एक्टिविटी आपका केमिस्ट्री में जो आप केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी और ये सब जहाँ करते हैं, उससे काफी कुछ रिलेटेड है. सो आप ये दो चीजें पढ़ लेंगे तो ऑल दी 50 क्वेश्चन. एंड यस, ट्रांजिस्टर में अगर थियरी नहीं भी पढ़ पाओ ना बच्चों, प्लीज इसके क्वेश्चंस कर लेना बस. दैट्स इट. यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट ऑल 50, so you don't need to. ठीक है बच्चों, I hope this session would be fruitful even for your board examinations, because we did a lot of questions in small time and I gave you tricks to do it. So please watch this session even before the board examination. You'll be happy, you'll be relaxed, you'll be confident, and you'll do well. Thank you so much. Bye bye, all the best, and let me know if you need any help in the Telegram group. I'll be more than happy to help you out.